کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک یہ اہل بیت نبوت کے خیموں پر حملہ کیا کوفیوں نے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو باندی بنا دیا گیا، قیدی بنایا گیا، اور بیڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کو بھی اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی لے جایا گیا۔ اور یہاں سے یہ قافلہ امام حسین کے سر کے ساتھ گیا تھا۔ حسین اعظم کا سر نیزے میں ڈال کر کے یہ لوگ کوفہ لے کر کے آئے تھے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد امام علی مقام کے سر کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا دمشق گیا تھا، ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں تک یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے، سچ کہا ہے شاعر نے، چن کر کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے۔ بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا۔ اس نے دیکھا، رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کے سر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے، فدا ہو گیا۔ کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، یہ امانت ہے، ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہے۔ نہیں دیا، لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم اس وقت جو چاندی کے سکے تھے تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ، ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا۔ انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے۔ اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا۔ امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری، چرچ میں رہنے والا راہب ہے، لایا، جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو، چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا۔ دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا، آنکھیں بھگوتا رہا۔ اس نے سوچا یہ کیسی قوم ہے جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، اس رسول کے بیٹے کو کاٹ کر کے لائی ہے۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے سر کو وہاں رکھا تھا، اونگ آئی، سو گیا، لیکن قسمت جاگ گئی، میرے آقا تشریف لائے۔ خواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے بچے کے چہرے سے تو نے دھول صاف کی، تیرے دل سے کفر و شرک کو میں صاف کرتا ہوں، پڑھ میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ عیسائی پادری میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھا، صبح اٹھا یا جیسے ہی اس کی نیند کھلی دیکھا تو اس کی قسمت جاگ چکی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ایک تو حسین کا چہرہ دیکھا تھا اور خواب میں ان کے نانا کا بھی چہرہ دیکھ لیا۔ قسمت کیسی جاگی ہے، اسی کو میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھا، ایک ہی مثال رکھا۔ صبح تو اس نے سر واپس کر دیا، لیکن یہی تو ہم کہتے ہیں اے ظالموں، تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر اسلام کو اس طرح نہیں پھیلا سکے جس طرح کٹا ہوا سر بھی گرجا گھر میں جا کر ایمان پھیلا رہا ہے، اسلام کی دولت سے روشناس کر رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا کٹ جانا قتل ہو جانا اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا کون ہارا، حقیقت تو بعد کے حالات بتاتے ہیں۔ کٹا ہوا سر بھی ابھی لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے، کٹا ہوا سر اب بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ حقیقت میں یہی تو فتح ہے، اور اسی کو آج ہم کربلا کے میدان میں جا کر دیکھتے ہیں۔ آج پوچھنا کسی سے، دمشق میں جا کر، ملک شام کا یہ کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے دمشق، جا کر پوچھنا یہاں کبھی یزید کا دربار لگتا تھا، یہاں خلافت ہاؤس ہوا کرتا تھا، یہاں بڑی عمارت تھی، وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ لوگ تمہیں پکڑ کر کے لے جائیں گے اور ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں پر یزید مر کر ختم ہوا، اس کی قبر محفوظ نہیں، لے جا کر کے تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں سڑن کی بدبو ایسی آتی ہے، دمشق والے اپنا پورا گاربیج، اپنا کچرا جہاں لا کر ڈم کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، جہاں کتے آج بھی پیشاب کرتے ہوں گے، اس جگہ پر یزید کے متعلق لوگ بتاتے ہیں یہاں ختم ہو گیا، یہاں اس کا دربار ختم ہوا۔ اور میرے عزیزو اگر قسمت ساتھ دے تو ایک بار عراق کے شہر اس کربلا کے میدان میں بھی جانا، وہاں جا کر کے پوچھنا، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا اور یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، یہاں پر کوئی پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور رسول اللہ کے شہزادے کٹ کٹ کر کے گرے تھے، اس میدان میں ان کے
टुकड़े उड़ाए गए थे, लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है, जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था हजार टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहां लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डालकर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है। हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही है तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही है। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदाने करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छीतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास। आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया। क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और यह बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है। और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम के मुसलमान हैं? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले, अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता जो हकीकत में शिया कहता रहा अपने आप को, हुसैन आजम का नाम लेने वाला। हैरत की बात होती है, हुसैन का नाम लेवा कभी गैर के हाथ में हाथ दे, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन उस कुत्ते को हमने बदलते हुए देखा, कुरान पर हमला करते हुए देखा, एक छोटी किताब लिख करके लाया कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताता हूं। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें रसूलुल्लाह के अखलाक हसना पर हमले, तीखे हमले किए और कुरान के मुतालिक एक नया कुरान बनाकर लाया। 26 आयतें निकालकर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये पुराना कुरान इस पर बैन लगाओ, मेरा नया कुरान जारी किया जाए। कौन है? एक राफजी कुत्ता पाला हुआ, यही हुकूमत वक्त का पाला हुआ कुत्ता था। और फिर हद ये हो गई कि बाद में बिल्ली थैले से बाहर आई, हकीकत क्या है वो पता चली गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके, और फिर साधु संतों की तरह रहने की कोशिश। कहा मैंने तो देखा है कुछ नहीं, उनका फजला उनकी गलाजत चाटने के लिए 6 महीने इधर उधर घूमा, लेकिन मेरे रब का फरमान सच्चा है, ये हरगिज तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। याद रखना, तुम अगर छोड़कर उनको राजी रखने के लिए बदलना चाहते हो, हरगिज राजी नहीं होंगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है, तुम्हारी इज्जत रसूलुल्लाह के घर वालों में है। इज्जत ढूंढने के लिए वो तो ऐसी ही हैं बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह, गाड़ी आगे गुजर जाएगी, कुत्ता अकेला रह जाएगा, कुछ होता नहीं। इनकी हैसियत इतनी है, खत्म हो जाती है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। अगर तुम इनकी हमनवाई के लिए अपने साथ, अपने दीन के साथ कोई सौदेबाजी करते हो, याद रखो जिल्लत और खारी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। मैं जिस वसीम राफजी कुत्ते के मुतालिक कह रहा हूं, हमने अब सुना है उसको वहां से भी लात मार करके भगा दिया गया। कब वो कबूल करेंगे? अरे अपनी छोटी कास्ट के लोगों को वो नहीं कबूल करते तो एक दूसरा धर्म बदल के आए हुए आदमी को कब तक? तुम्हें तो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए और मुसलमानों को वर्गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही है। इस्तेमाल हो गया 6 महीने तक, लेकिन ये दज्जाली मीडिया ने देखा मुसलमानों पर कुछ असर नहीं होता, इसको बदल करके हमने देख लिया, अरे जमात तो जमात, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी फर्क नहीं आएगा। जो हकीकी ईमान वाला है उसके लिए ये सब हालात डगमगाने के लिए नहीं आते।
क्या हुआ, अब वीडियो बना बना करके रिक्वेस्ट करता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरी जान की हिफाजत करें, मैं कत्ल हो सकता हूं, मैं मारा जा सकता हूं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब इस तरह बेयारो मददगार घूमता रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, सिर्फ हुसैन का नाम लेने से काम नहीं है, उनके मिशन पर कायम रहना जरूरी है। जैसी भी ताकतें आए, मैं हमेशा ये कहता हूं जिंदगी वैसी भी जाने वाली है, मरना तो वैसी भी है। तलवे चाट कर क्यों मरे, अल्लाह का दीन बुलंद करके मरेंगे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मरेंगे, मरना ही है। हुसैन का पैगाम यही है, ए नौजवानों इसी अज़्म पर कायम रहो, जो होगा देखा जाएगा। मेरा रब कुरान में फरमाता है कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। इंशाअल्लाह मदद आएगी, मदद आएगी। आज थोड़ा आप इम्तिहान दे दें, बच्चे फल खाएंगे इंशाअल्लाह। आज कुरान पर हमला हो तो कुरान को उठा लो, कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाओ। स्कूल जाने पर जितनी सख्तियां करते हो, ना जाने पर उतनी सख्तियां तुम्हारे बच्चों के मदरसा ना जाने पर भी हो कि बेटा सबसे पहले नंबर पर अल्लाह का कलाम है, कुरान पढ़ ले, बाद में दुनिया अल्लाह सदके में अता करेगा। मुसलमानों तुम्हारे घर में यह रिवाज आ जाए। आप अपने बच्चों को, किसी एक बच्चे को भी, आज का ये मेरा पैगाम है खुसूसी, मैं ये चाहता हूं कि एक घर का बच्चा भी जाहिल रहने ना पाए, कुरान से गाफिल रहने ना पाए। इतना तो हो कि कल कुरान उठाओ कयामत के दिन तो कुरान तुम्हारी सिफारिश करे, ए मौला ये मुझे पढ़ता था। हदीस में है जो सूरे मुल्क पढ़ता है ना तबारक, कयामत के दिन ये सूरे अल्लाह से झगड़ा करेगी, लफ्ज झगड़े का है। ए मौला ये पढ़ने वाले की अगर तू बख्शिश नहीं करेगा तो मुझे अपने कलाम से निकाल दे। रब ताला सूरे मुल्क तबारक के इस मुकद्दमे को सुनकर फरमाएगा तुझको पढ़ने वाले की मैंने बख्शिश कर दी, जा तू उसे जन्नत में ले जा। मरने के बाद ये सूरे तबारक कुरान की सूरे है, जो पढ़ता था ना मरने के बाद कब्र में जाता है, रिवायत में मौजूद है, तुम तो सब दफन करके जा चुके होंगे, ये सूरे मुल्क तबारक अल्लाह के पास जाएगी और अपने इस पढ़ने वाले की बख्शिश के लिए झगड़ती रहेगी। अल्लाह जब कहेगा माफ कर दिया जा, ये सूरे मुल्क जन्नत में जाती है, तकिया लेती है, बिछोना लेती है, हवा का इंतजाम करती है और वापस सूरे मुल्क कब्र में आती है और आकर के उस मैयत से कहती है देख मैंने तेरी सिफारिश की, अल्लाह मान गया और मैंने तेरे लिए जन्नत से तकिया भी लाई और मैं तेरे लिए बिछोना लाई, कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हुई। मैयत से सूरे मुल्क ये कहती है जो कब्र में हमारे लिए साथ दे वो कुरान है, आज उठाओ कुरान मेरे अजीजों। जालिम कुत्ते अगर कुरान को जला रहे हैं तो उसका जवाब यह है कि हर बच्चा कुरान उठाए। हमारे खानदान में यह आज़म करो एक बच्चा तो कम से कम हाफिज कुरान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप ये आज़म करो, कॉलेज पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, क्या फर्क पड़ता है हाफिज कुरान इंजीनियर बन जाए, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें डॉक्टर भी हो और हाफिज कुरान भी हो। आप दुनिया जरूर पढ़ाएं लेकिन बच्चों को बचपन से हाफिज कुरान भी बनाएं। कल को इतना तो सामान होगा हम मर जाएं तो हमारी कब्र पर यह कुरान पढ़ेगा, अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। अल्लाह करीम हुसैन आजम के इस पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मैं आज की इस महफिल आखिरी महफिल है, शुक्रगुजार हूं इस मस्जिद हाजा के, इस मस्जिद के खास मुतवल्ली सदर और आराकीन और तमाम मुआविनीन मोहल्ले वालों को जिन्होंने बड़ी इज्जतों से नवाजा और बहुत ही हमेशा ख्याल किया है। अल्लाह आपके इकबाल बुलंद फरमाए और हमेशा इस मस्जिद को मौला शादो आबाद रखे और दीन और सुन्नियत का इसको मरकज बनाए और इस मस्जिद की बरकतें मौला आप सबके घरों में अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।